साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। I thank our chairman, Professor S.C. Vyas ji. He is the guiding force behind everything that happens in this college. Everything. He is a visionary and he never hesitates to take initiatives. He says, "This is Mahila PG Mahavidyalaya. We should stand apart from all the colleges, all the universities." So this is his vision and the vision of our former chairpersons and the people who found this college. And above all, my greatest thanks to Dr. Priyanka Vyas. Thank you so much, ma'am. Sir, okay, tell me. Sir Gamal with the inaugural, and we were fortunate to have Honorable Maharani Sahiba Himlata Raje as the chief guest, and she appreciated the entire cultural thing that we were doing. Then we had food festival prepared by our students, because this is the year of millet as declared by our Honorable Prime Minister. So various items from millets were prepared by our students of home science under the guidance of their teachers. Then heritage walk of the Blue City, the majestic Mehrangarh, and then we had the showcase of traditional dresses of and I'm congratulating my students also. I'm part and parcel of this institution, and I can say that all the students, including the teachers, these teachers, they are regularly watching the studies, as well as they are trying to give some support for cultural heritage, for maintaining cultural heritage. Today, they performed well, and I have been informed that in a very short period they prepared and performed before you. I again congratulate, and Manorama Madam, thank you very much to you and your team, because you are doing well. Every time when I am coming here, I am looking at some new ideas. You are sometimes. I am very happy to say that every time S.P. Vyas is asking me to participate in the programs of this school, in this college. All the three daughters, they were also students of this college, and now after passing out they went here, but
they are also very rich in culture heritage and all classic of these people. Thank you very much. As extravaganza that was just happening just now, and just seeing them putting all the hard work and dedication and love, because you wouldn't be doing this if it's not for the friendship and love for each other, to be able to come up with a time where we can all for the same goal, to work together and to show respect for each other's culture. I think this is just great beginning of what's coming ahead. So thank you so much. And I was very, very emotional, and I was looking at the delegation. My delegation who came with me from Korea, and everybody was so touched. And we won't forget this experience rest of our life. Thank you so much. We thank you, sir, and we are honored to have you here. This was the last function of the 4-day event. So, Judge Sahab, I would like to tell you that from the last 4 days, our guests from the Korea have been very, very, very patient and appreciative of us. They all thank you. डॉक्टर अनूप राज जी पुरोहित हमारे साथ हैं। सारंग और सर्जन की जहां बात हुई, बिना सारंग संगीत के कुछ भी नहीं, और संगीत के इतने सारे साज यहाँ, और यहाँ आप संगीत के प्रोफेसर के रूप में बालिकाओं को तैयार कर रहे हैं, संगीत जगत को बहुत कुछ दे रहे हैं। और यहाँ 4 दिवसीय कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, उसमें आपकी जो शिष्यों ने जैसा प्रस्तुत किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगा, प्रणाम। जो भी मैंने सीखा मेरे गुरुजनों से सीखा, और उन्हीं के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है जो आगे देने का, वो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का। और सारंग सृजन का जो ये 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज महिला महाविद्यालय में संपन्न हुआ, उसमें आज सुबह संगीत विभाग की छात्राओं को यहाँ की फोक संस्कृति और लोक गीतों को उनके सम्मुख प्रस्तुत करने का एक सुअवसर उन्होंने सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने यहाँ की ऋतु राग, यहाँ के पशुओं के गीत, यहाँ की हर सीजन में गाए जाने वाले त्योहारों और फेस्टिवलों के गीतों को हम लोगों ने इसमें समावेश किया, और उनको एक श्रृंखलाबद्ध करके उसको एक अच्छी क्या कहते हैं रागमाला बनाकर हम लोगों ने प्रस्तुत किया, जिससे हम लोगों ने हमारी संस्कृति को हमारे लोकगीतों के माध्यम से उनसे परिचय करवाया। हम उन लोकगीतों की थोड़ी सी झलक आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये वो झलक है जो पशुओं से नहीं बल्कि पक्षियों की जो आपकी मधुर ध्वनि होती है उससे शुरू होती है, प्रकृति के साथ मिल जाती है। जी, मैं आज सुबह की प्रस्तुति का एक छोटा सा अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें राजस्थान की इतिहास में हमेशा शौर्य, वीरता, जौहर, इनकी गाथाओं का गुणगान किया गया, लेकिन हमारा एस्थेटिक जो था, सौंदर्य, वो हमेशा पीछे रह गया। उसी की एक बेमिसाल जो एक कृति है, जो मैं आप लोगों के सामने 2 लाइन गा के मैं कोशिश करता हूँ। काली काली काजड़ियेरी रेख जो काजड़ियेरी रेख जो कोई भूरोड़े भाकर में चमके, भूरोड़े भाकर में चमके, बिजली नखरालिए मुमल हाले तो रायारी मुमल हाले तो ले चालू ढोले रे देश में, जुग जियो ए हरि मुमल हाले तो ले चालू मरुधर देश में।
बहुत सुंदर मार्ड की ये प्रस्तुति, बिल्कुल इसी तरीके की गीतों की जो झड़ी जिन्होंने सुनी, निश्चित रूप से वो और भी लाभान्वित हुए होंगे। हम बिल्कुल ऐसी ही आपकी झलकियों से जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। प्रो इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात सारंग और सर्जन की, जहां 4 दिवसीय कार्यक्रम यहां महिला पीजी महाविद्यालय में दक्षिण कोरिया की वो टीम और यहां राजस्थान की, जहां सांस्कृतिक नगरी की बात करते हैं जोधपुर, वहां आई और बहुत कुछ सीखा, खेलकूद में भी, और हर तरीके की एक्टिविटीज 4 दिन में हुई। हमने हमारे चैनल के माध्यम से आप तक वो पहुंचाया। लेकिन आज जब समापन के अवसर की बात है तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी व्यास साहब, जहां जज तो रही हैं, हर जगह आप न्याय की बात करते हैं, लेकिन संगीत जगत से जुड़ी हुई एक ऐसी शख्सियत जिनका कोई मुकाबला नहीं, चाहे भजन हो चाहे क्लासिकल संगीत हो, जहां आपको विरासत में प्राप्त हुआ। हम जानना चाहेंगे कि बिल्कुल संगीत की ये सारी दुनिया यहाँ है, और इस संगीत की दुनिया के अंदर आपने जहां समापन अवसर पर जो रंगारंग कार्यक्रम ऐसा देखा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमारी ये संस्कृति वहां तक और वहां की संस्कृति यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं आज अभिभूत हूँ, इतना सुंदर कार्यक्रम और कल्चर हेरिटेज जो हमारी बना के रखी है, और कोरिया की जो दक्षिण कोरिया के जुड़ पाया है, उन्होंने देख के मैं देख रहा था कि वो उनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे, वो सोच रहे थे जैसे वो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हो, और जब उनका गीत गाया जा रहा था या उनकी परफॉर्मेंस की जा रही थी तो वो ज्वाइंट हो रहे थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कार्यक्रम इतना सार्थक हुआ है, जिससे 2 ऐसे बड़े बड़े देशों का संपर्क, सांस्कृतिक संपर्क हुआ है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, और बच्चे और यहाँ के टीचर्स और आप सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत, क्योंकि ये 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं भारत और दक्षिण कोरिया की मित्रता के, उसके अवसर पर भी ये कार्यक्रम था। तो इसलिए हम ये भी देखेंगे कि जहां एक स्केटिंग के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया, फ्यूजन का कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में खास बात, क्योंकि आपने तो गा करके केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश की बात की ही, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ 2 देशों की संस्कृति आपस में मिलती है तो लोगों को सीखने का मौका मिलता है, और आज 50 वर्ष कितने पूरे हो गए हमारी दोस्ती को, और उसका आज ये जीता जागता नमूना है कि हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, वहाँ के लोग आके हमको समझ पा रहे हैं, हम उनको समझ पा रहे हैं, और एक गीतों के माध्यम से अपनी बात कहने का माध्यम जो है वो एक सुरीला माध्यम है। मैं इसलिए आप सब लोगों को बधाई दूं। देश की जनता के साथ साथ राज्य की जनता के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो, क्या संदेश देंगे? ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो अच्छा नहीं है, शांति रहनी चाहिए, और शांति के लिए सबसे बड़ी जरूरत है सरस्वती माँ की आराधना, और सरस्वती की आराधना संगीत के माध्यम से हो सकती है। और सामने जो साज पड़े हैं, ये साज तो खुद बोल रहे हैं कि हमें सांस्कृतिक जरूर को बचा के रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला।